नमस्कार, मार्केट टाइम्स में आपका स्वागत है। बजट 2015 स्पेशल, कमोडिटी क्या कहता है बाजार, और साथ ही साथ कैस्टर सीड इंडस्ट्री को क्या है, कैस्टर सीड से उम्मीदें, बाजार किस दिशा की तरफ जाएगा, ये सब बताने के लिए इस समय पर हमारे साथ मौजूद हैं अभय वी उदेशी साहब, जो चेयरमैन है जयंत एग्रो। अभय जी, मेरा पहला सवाल बजट को लेकर के इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें हैं? I think oil sector is still not the priority for the government. Yes. I think there are many other things that the government is looking. But agriculture But I think agriculture is one thing, and I hope that the government comes out with, especially I would only focus on castor because we are castor related industry, and our company is based only on castor. Yes. So we are more focused on a very small field. So I'm expecting that the government, as far as castor is concerned, in the budget, there will be some simplifications. बट यहाँ पर तो और ज़्यादा इमोशनल टच आ जाना चाहिए बिकॉज प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू गुजरात एंड कैस्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू गुजरात. That's correct. You can say It's a very dear field to him. requirements fulfill from Gujarat itself. Right. It's a dear field for our Prime Minister also. So we are expecting, because castor as a vegetable oil in agriculture is probably one of the big agricultural commodity which is export oriented. Yes. Rather, all the other vegetable oils are imported into the country. Yes. So castor is a special field in that regard. So we're expecting some good directions from the government in terms of budget, maybe simplification of taxes. You know, because being an export-oriented industry, today we are paying a lot of taxes domestically, which if the government comes out with आपकी इंडस्ट्री जीएसटी के साथ जाएगी? GST के साथ जाएगी. अभी तो वैट है, Yes. बट वैट हमको भरना पड़ता है और एक्सपोर्ट करते हैं तो वापस रिफंड लेना पड़ता है, तो द प्रोसीजर इज वेरी लॉन्ग. Yes. And the industry is suffering on account of huge blockage of funds by the industry. So in that regards, I think if some simplification comes there, and being an export-oriented company, budget के सामने, if we see some more incentivization of the value-added products, Make in India जो campaign चल रहा है government का, so castor oil is one such product where you know we are making in India, but we can go for value addition, and if some encouragement is given. Okay. From the Opportunities government. are Opportunities are plenty. Opportunities are aplenty. Okay. But market behavior, so a lot of things have to be put in place. क्या लगता है आने वाला जो ये टाइम टेन्योर है, बट वी हैव सीन इन लास्ट 3 months इन कैस्टर पर्टिकुलरली प्राइसेस वर वेरी मच वोलेटाइल. 2800 रुपये की चीज़ मोर देन 5000 पर गई, 5000 रुपये से ऊपर बिकी, 5000 रुपये से लुढ़क करके आई, 4000 रुपये के नीचे आई. नाउ क्या लगता है आपको प्राइस कहाँ पर जाएंगे? Price, as I have said in my address today, I think we are living in the world of competition, Yes. whatever be it. Yes. So castor is also competing against some other products, be it crude oil, be it vegetable oil. काफ़ी लोग मानते नहीं हैं, राइट. मिथ के ऊपर है कि कैस्टर डिमांड इज इनइलास्टिक, ऐसा कुछ है नहीं. वी आर ऑलवेज कॉम्पिटिंग अगेंस्ट समथिंग. ओके. सो इफ एवरीथिंग इज डाउन, कैस्टर ऑल्सो हैज टू कम डाउन. उसमें अपने को घबरा नहीं जाना चाहिए. राइट. आई थिंक डिमांड विल ओनली बी जनरेटेड इफ वी आर कॉम्पिटिटिव. सो प्राइस नीचे जाएगा, उसमें डिमांड बढ़ेगी. राइट. At the end of the day, it's good for the industry, good for the farmers also. And for the farmers, I've always said, the answer lies in the productivity. आज गुजरात में our crop yield is less than 1500 kilos per hectare. Okay. We have seen today in the morning session, we have awarded some farmers who have got Yes. yields as high as 6 Yes. tons Yes. of castor per hectare. Yeah. So there's a big challenge on the productivity side. So if the farmers improve the productivity, I think there is enough in the trade to gain for everyone. Yes. ओवरऑल सिनेरियो भी क्या नज़र आ रहा है? अगर क्योंकि आप कैस्टर सीड के अंदर हैं, और कैस्टर सीड की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, क्या लगता है 3200 रुपये का जो लेवल है बॉटम साइड टच होएगा? जो प्रोडक्शन की फिगर्स हैं, जो कैरी फॉरवर्ड की जो फिगर्स आ रही हैं,
इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है कि 3200 इज़ अ रेलेवेंट प्राइस? 3200 जा सकता है, बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम स्पेकुलेशन एक टाइम ऐसे भी आ सकता है कि इट मे गो बिलो, ओके ओके, यू नो, यानी इससे भी समथिंग आप नीचे- एक्सेसिव रबर बैंड को है आप खींच के रखे तो वो कहीं ना कहीं कहीं break टूटने वाला है, करेगा, ब्रेक yes, करेगा. बिल्कुल। सो दिस इज अ सिम, Okay. आई मीन दिस इज अ नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस बोलो, यस यस यस, जिसको एक्सट्रीम करने को जावे तो वो टूटेगा ही टूटेगा टूटेगा, उसमें मतलब कोई दूसरा थॉट ही नहीं है। राइट. क्या इस समय पर इंडस्ट्री को लेकर के, क्योंकि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री है आपकी, हमारी एडिबल नहीं है, वी आर नॉन एडिबल. कैस्टर इज नॉन एडिबल. कैस्टर इज नॉन एडिबल, Non-edible. ओके। कैस्टर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, क्रूड ऑयल के साथ काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट किया जाने लगा है इसको। इट हैज टू बी हाँ, बिकॉज द एप्लीकेशंस आर अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपके नीचे आ रहे हैं, आधे हो गए. आधे हो गए, 50% हो गए। राइट. क्या ये माना जाए कि 50% कैस्टर सीड भी आना चाहिए अपने हाई प्राइसेस से? I don't think that. Then it is not remunerative to the farmer. ओके, यस, So I think crude oil भी जो नीचे गया है अभी आपने सुना भी, and I think the world is also expecting that it should rebound. यस, So एक लेवल ऐसा आएगा, and I believe जो 3200 आपने जो फिगर बताया, I think to breach that number ओके, is only because of other conditions. अदर फैक्टर्स, Other factors, which is What a kind of speculative. factors? This is a speculative. Okay. Extreme case हो गया, 5300 हो गया, तो उसको रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन, तो थोड़ा नीचे जा सकता है. उससे नीचे फिर रेम्यूनरेटिव नहीं है फॉर द फार्मर. वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फार्मर्स आल्सो. यस। अभी इंडस्ट्री की और क्या डिमांड है गवर्नमेंट से? क्योंकि वायदा, क्या आप मानते हैं कि वायदा के अंदर कंट्रोलिंग, रेगुलेशन, रेगुलेटरी कंट्रोल्स आर वेरी एसेंशियल, क्योंकि एक तरफी जो हाईजैक कर लेते हैं स्पेकुलेटर्स, सो दैट्स अ बिग तो इसको प्रॉब्लम. कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लानी चाहिए गवर्नमेंट को, रेगुलेशन को, विच इज द एफएमसी इन दिस केस. लेकिन जो बिग टाइकून्स हैं और यूँ कह लीजिए कि बाजार को कंट्रोल करने वाली जो ताकतें हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? गवर्नमेंट का इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इन गुड रेगुलेशंस, और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए रेगुलेशन. किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी आप? नहीं, वो एडॉक करने से कोई फायदा नहीं होता है. ऑन द अदर एंड इट बिकम्स डेट्रीमेंटल टू द इंडस्ट्री. जैसे कि 19 दिसंबर को सर्कुलर आ गया, तो प्राइस आपका बढ़ के 4600-700 से बढ़ के 5300 हो गया, चला गया जी। 5300 के ऊपर चला गया. 26 दिसंबर को 5300 के ऊपर चला गया, और 1 जनवरी को वापस 4000 के 4600 जी। वही आ गए, और टुडे वी आर एट 3800. सो दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज इट वाज गुड दैट अ लॉट ऑफ फिजिकल केम इनटू द मार्केट. फ्यूचर मार्केट्स को भी लेकर के क्या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं डे बाय डे, और जो मनी पास हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को रेगुलेट कर रही हैं फ्यूचर मार्केट्स के थ्रू, और फिजिकल मार्केट के ऊपर वो हावी हो रही है, जिससे डिस्पैरिटी जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है? बहुत सारा. तो वो फ्यूचर मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए केवल एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए? और क्या कॉस्ट ऑन वन साइड वी आर टॉकिंग ऑफ कॉस्ट रिडक्शन. यहाँ पे एक एबेरेशन है. आपका 4000 रुपये का सीट स्पॉट मार्केट में है, यस एक्सचेंज में, फ्यूचर एक्सचेंज में 4400 है, जी। तो वो जो 10 डिफरेंस है, तो 10% हो गया. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. yes, आई मीन इट्स नॉट 4400 बट 4300. यस यस So there are people who do not know what is the caster, where it is going. यस, तो वो तो आर्बिट्राज करने के लिए पैसा लगा देते हैं, राइट, and lot of people are lost in that. So that's the financialization. यस यस तो उसी में और ये जो 4000 से 4300 है, उसमें कॉस्ट फैक्टर इज वेरी हाई. ओके, टू डिपॉजिट योर फिजिकल्स इनटू द फ्यूचर्स एक्सचेंज, ओके, उसका खर्चा ही 200 रुपया है. 200. तो 300 रुपया दिखाता है, 400 रुपया दिखाता है, 200 रुपया तो कॉस्ट है. तो द कॉस्ट इज वेरी हाई. डेफिनेटली, So the futures exchange also have to play an important role. उसको जो market conditions है वो उसी तरफ से चलना चाहिए. आज though we are saying and we are trying to make the exchange also more efficient, but exchange has done a wonderful job by accepting good deliveries, and that is how we saw 4 lakh ton in the warehouse. But it was a great difficulty. Earlier it was 10-15 days a truck was waiting to get deposited into the warehouse. warehouse. अभी थोड़ा वो मैच्योर होने को टाइम भी लगता है, सो वी हैव टू गिव ऑल द टाइम, बट द डैमेजेस आर डन ऑलरेडी.
उसका शायद अभी थोड़ा सा और मैच्योरिटी में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। समय लगेगा। अगर आप वित्त मंत्री होते तो आप पहला स्टेप क्या लेते हैं, इंडस्ट्री को लेकर के, कैस्टर सीड को लेकर के, फार्मर्स को लेकर? I think उसमें two things are there. One is on the tax issues, which the exporting community, because you know castor is an exportable commodity. कमोडिटी, यस। 90% इंडिया का जो है वो एक्सपोर्ट ही हो रहा है, तो उसमें जो टैक्सेस जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलना चाहिए, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आना चाहिए। फ्रॉम द फार्मर्स पर्सपेक्टिव आपने पूछा मेरे को, तो फार्मर को रेम्यूनरेशन होना चाहिए। तो फार्मर को एक तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग थ्रू दिस फोरम, कि दैट इफ अ गुड फार्मर कैन ब्रिंग 6 टन, then everybody can do. आज average is still less than 1500 kilos per hectare. So if it becomes 6,000 kilos, तो थोड़ा इकोनॉमी पूरा चेंज हो जाएगा। more affordable to everyone. डेफिनेटली। फार्मर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आमदनी अच्छा हो जाएगा, इंडस्ट्री को अच्छा हो जाएगा, गुड प्राइस, उसमें कंजम्पशन बढ़ेगा। So the industry will grow, the consumption will grow. So that's very important. एक लास्ट मैसेज और आपसे लेना चाहूँगा, फिर से मैं वहीं आऊँगा। कब तक आपको लगता है 3200 रुपये का प्राइस कैस्टर में देखने को मिल सकता है? And see it before June बिफोर जून 3200 रुपीज़ होना चाहिए, ब्रीच करता है। होना चाहिए, hopefully. That will give an impetus to the industry. Today industry is also shying away. यस। कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं. Inventories levels have gone tremendously low by the end industry. यस। So I think if it grows, हिडन इन्वेंटरीज आर 3200 पे हिडन इन्वेंटरीज अभी नहीं है, अभी है बहुत कम होगी. बहुत कम होगा।